Students, today we have among us a research scholar from Abu Dhabi University, Mr. Narendra Kumar, a research scholar in material science. He hails from our own district, Bilaspur. Earlier, he has been a student at GC Gomarbi. He did his project work under the guidance of Dr. Arun. He also worked in a research institute at Bhilai, Chhattisgarh. So today he is going to deliver a talk here. First of all, I request Professor Arun, Professor Ghanshyam ji to present a bouquet to our principal ma'am. इधर सामने से आके लो बेटा. Thank you. Again, I request our physics faculty and principal ma'am to present a bouquet to our today's resource person, Narendra ji. Now I request our birthday principal to say a few words on this occasion. Thank you, Dr. Sujit ji. Today's resource person, Mr. Narendra Kumar, the research scholar, physics department, UAE University, United Arab Emirates. Dr. Sujit Chandel, head of the Department of Physics. My worthy colleagues, Dr. Arun, Dr. Ghanshyam, and dear students. First of all, I would like to welcome our resource person, Shri Narendra Kumar, on my behalf as principal as well as one of the physicists. You know, my subject is also physics. And whenever I find an opportunity to visit the Department of Physics, it gives me immense pleasure. I am always delighted because this is the department where I served for about 20 years. And this is the classroom where I taught thousands of classes. In 20 years, you can imagine that how many times I must have delivered lecture in this classroom. So it gives me immense pleasure, and at the same time I become nostalgic also. Whenever I am here in this classroom, I remember many of my old students, those who used to sit in the front rows, and now they are achievers. They have achieved some heights in their career, and some of the students who used to sit in the back seats, and they used to get our attention with their some naughty activities. You know, different kinds of students are always present in classes. So whenever I get opportunity to visit Department of Physics, I love to be here. And for today's this activity, I would like to congratulate Dr. Sujit Chandel as well as Dr. Arun and Dr. Ghanshyam, because this is something very rare that one of the students who was a PG student from one of the government colleges. He did PG from Government College, Gomarbi. And from where did you completed your BSc? From Government College, Port Shera.
तो आप में से ही एक है ये, आप में से का मतलब ऐसे ही गवर्नमेंट कॉलेज कुमारवी, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर एक ही जैसे कॉलेजेस तो हैं, बल्कि गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड है, ज़्यादा पुराना है, और भी कई बातें हैं जो थोड़ा सा इसको हायर एज पे रखती हैं गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर को। तो ऐसे ही एक कॉलेज से शुरुआती, आई थिंक ही वाज स्टूडेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेशन 2017 जब गवर्नमेंट कॉलेज कुमारवी में एमएससी स्टार्ट हुई, ठीक है। मैं भी इनफैक्ट 2017 तक गवर्नमेंट कॉलेज कुमारवी में भी मैंने सर्व किया, और उसी साल प्रोफेसर अरुण और बाकी सब लोगों के एफर्ट से एक बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ, एमएससी क्लासेस स्टार्ट हुई, और उस फर्स्ट सेशन में ही वाज वन ऑफ द स्टूडेंट। तो ऐसे ही एक कॉलेज से निकल करके आज ये एक तरह से इट इज़ अ बिग अचीवमेंट कि इन्होंने एमएससी कंप्लीट की, और एमएससी के बाद ये रिसर्च में अपने आप को उन्होंने इन्वॉल्व किया, और रिसर्च में भी अपने यहाँ से भिलाई वगैरह जैसे आपने बताया वहाँ से निकल करके फाइनली एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, एक हाई रैंक की यूनिवर्सिटी होगी ये, वहाँ पे ये रिसर्च एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। व्हाट इज़ योर स्पेशलाइजेशन? आई एम वर्किंग इन मटेरियल साइंस। इन मटेरियल साइंस, इन मटेरियल साइंस। आप में से अच्छा एमएससी फिजिक्स के कितने स्टूडेंट्स हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। अच्छा, बाकी एमएससी केमिस्ट्री के भी हैं कुछ? बीएससी के बच्चे हैं। तो आपके बीच में नरेंद्र जी आए हैं, ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है ना, इनसे आप इंस्पायर हो सकते हो, आप एक ड्रीम बना सकते हो, आप सपने बुन सकते हो कि ऐसे कॉलेज से निकल करके भी आपके लिए किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। मतलब एमएससी करनी है, एमएससी के बाद पीएचडी करनी है, या आपने किसी और तरह के कोई करियर चूज करना है, वो तो आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। लेकिन कई बार हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन समटाइम्स वी जस्ट रिमेन अनगाइडेड, और हमें पता नहीं चलता कि हमें क्या करना है, एमएससी के बाद हमें कहाँ जाना है। तो ऐसे बच्चे जो कुछ सोच रहे हैं कि मुझे कुछ रिसर्च में आगे बढ़ना है, उनके लिए ही विल बी एन इंस्पिरेशन, और उनसे आपको जैसे आज जो भी आपके साथ उनकी इंटरेक्शन होगी उससे आपको पता भी चलेगा कि इस तरह से आप रिसर्च में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे आप अपना करियर बना सकते हैं। हू नोज़, कल को यही अब्दुल कलाम की तरह से बड़ा नाम कमा जाएंगे। हू नोज़, आप में से कोई कल को बड़ा कोई साइंटिस्ट बन जाए, कोई बहुत बड़ा प्राइज़ ले जाए, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ होता है जैसे साइंटिस्ट के लिए, कोई और कोई बड़ा आपको ऑनर मिल जाए, क्या पता कल को जैसे जिस तरह से हम इंडिया एक नॉलेज सोसाइटी के रूप में हम ग्रो कर रहे हैं, हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस दे आर ब्लूमिंग, हायर एजुकेशन पे गवर्नमेंट हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो, हायर एजुकेशन पे मतलब बहुत एक प्रायोरिटी पे है हायर एजुकेशन। तो क्या पता आगे चल के आपको इतनी अच्छी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आप हायर एजुकेशन में या रिसर्च में आगे बढ़ते हुए हू नोज़ कि आप में से कोई कल किस लेवल पे पहुंच जाए। साइंटिस्ट होना तो एक बड़ी बात है ही है, लेकिन उसमें भी साइंटिस्ट ऑफ अक्लेम है ना, इस तरह के आप साइंटिस्ट हो सकते हैं, और बड़ा नाम हो सकता है। क्या पता कल को हम हमारी जो साइंस रिलेटेड रिसर्च रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं नोबेल प्राइज़ में हमारे लिए, पता थोड़ी है। अब्दुल कलाम जी कहाँ से निकले थे? एक अगर उनकी आप बायोग्राफी पढ़ो तो बहुत एक जिसको कहते हैं कि लो लाइन ओरिजिन के साथ उन्होंने अपना जीवन स्टार्ट किया, और छोटे मोटे स्कूल्स और यूनिवर्सिटी से पढ़ते हुए वो कहाँ तक पहुँचे। उनका तो हम नाम ले रहे हैं क्योंकि मतलब अभी वो याद रखते हैं उस तरह से, प्रेसिडेंट भी वो हमारे बने, लेकिन इस तरह के एग्जाम्पल्स की कोई कमी थोड़ी है। तो आप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। स्काई इज़ द लिमिट। स्काई भी क्या, उससे आप तो फिजिक्स के बच्चे हैं, आपको तो स्काई भी लिमिट नहीं है। स्काई फ्री है 10 किलोमीटर ऊपर, 10 से 400-500 किलोमीटर ऊपर तक, है ना। आपके लिए तो क्या है, कोई हद ही नहीं है। इनफाइनाइट यूनिवर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब आपके लिए तो पूरी यूनिवर्स है एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज जो ये एक लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें जो नरेंद्र जी हमारे बीच में आए हैं, आई एम श्योर इनकी जो आपके साथ इनकी इंटरेक्शन होगी, जो डेलिब्रेशंस होगी, उससे आपको जरूर फ़ायदा होगा। और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप में से बच्चे जो भी बीएससी कर रहे हैं, एमएससी तो चलो जो है सो हैं, लेकिन जो बीएससी कर रहे हैं कुछ बच्चे डेफिनेटली आज एक ड्रीम बनाएंगे और उस ड्रीम को वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे और आगे तक उसको ले जाने के लिए नरेंद्र जी एक उसमें आपके लिए एक ब्रिज का काम करेंगे, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का काम करेंगे।
और बाकी बच्चे से अपनी पढ़ाई करें, ऐसी मेरी आपको गुड विशेज़ है। कि आप अपना जो टाइम भी वेस्ट करते हैं ना बहुत ज़्यादा, किस तरह से टाइम वेस्ट करते हैं, मैं भी करती हूँ, तो मोबाइल फ़ोन में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको आप एक अपनी स्टडीज़ के लिए यूज़ करें और टाइम वेस्ट ना करें, अपने टाइम को स्मार्टली हैंडल करें, स्मार्टली यूज़ करें, क्योंकि टाइम एक ऐसा धन है, ऐसी वेल्थ है जो एक बार हमारे हाथ से निकला कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं मिलेगा, आप कितनी भी एफर्ट्स करें, जो निकल गया सो निकल गया। तो अपने टाइम का आप सदुपयोग करें, ठीक है। और जो आपको आज इस लेक्चर से जो भी आप कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इंस्पिरेशन लें, उसको सहेज के रखें और उससे आगे बढ़ने में आप उसको मतलब उसको यूज़ करें। ये मेरी आप सबके लिए गुड विशेस। और नरेंद्र जी का मैं बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला है और हमारे बच्चों के बीच में आए हैं। और साथ ही में मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स प्रोफेसर डॉक्टर सुरजीत चंदेल, डॉक्टर घनश्याम और डॉक्टर अरुण, इनका मैं खास तौर पे थैंक्स करती हूँ फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वंडरफुल इवेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू। So, hello everyone. Firstly, I would like to thank you, respected principal ma'am, Arun sir, Sujit sir, who invites me here. So, my name is Narendra Kumar. I am a research scholar in United Arab Emirates University. So, these are the snaps of our university. I took it from internet. It has good world ranking. It has 293 world ranking. It has good infrastructure, good laboratories, and everything is profiled. As a researcher, I am working in the field of batteries, hydrogen storage, and the gas research. Today, it's great to see all of you that you are interested in the research of material science. So, if we talk about the material science, what is material science? What is material science? What we are trying to do? You know, everything is made up of atoms and small materials. So, we are trying to improve their performance to make them better and better for the futuristic applications. So what we can do in the material science, we have mainly three main areas we can say to work, like the experimental, computational and theoretical modeling. अगर मैं अपनी बात करूँ, I am a computational physicist. Although I work with the experimental people, I will tell you the story how I work with them. जब मैंने MSc में 2017 में एडमिशन ली, मुझे भी नहीं पता था कि रिसर्च क्या होती है, कैसे होती है, पर कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो आई वुड लाइक टू थैंक माय मेंटर अरुण सर हु गिव मी द डायरेक्शन। तो जब एडमिशन ली, साथ में आई वाज डूइंग जस्ट मास्टर इन देयर, और साथ में बैंक, PO, पुलिस की भर्ती वो साथ में चला ही रहता है, पटवारी, लावला, वो सारा हमारा चला ही रहता है साथ में। मुझे पता ही नहीं था कि कोई रिसर्च में हम एज अपना कैरियर चूज कर सकते हैं, रिसर्च में हम जा सकते हैं, कुछ इसमें हम हायर कुछ अच्छा कर सकते हैं। अरुण सर की बहुत अच्छी डायरेक्शन रही। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ जो मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। मैं अबाउट हमारी MSc मतलब खत्म होने वाली थी, हमने अपनी थीसिस सबमिट कर दी, सब कुछ हो गया। तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज अ रिसर्च स्कॉलर इन संप्रदाय टेक्निकल कैंपस। मैं अरुण सर के पास गया कि सर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि क्या करूं, शुड आई जॉइन देयर। उस टाइम स्टाइपेंड वहाँ पे कुछ नहीं था, तो और हमारी ऐसी एज होती है कि उस टाइम घर वालों से पैसा लेना थोड़ा ठीक नहीं लगता है। तो अरुण सर ने कहा कि यू कैन अप्लाई फॉर हायर इंस्टीट्यूट लाइक IITs, JNCR। मन में एज अ स्टूडेंट मैं सोचूं सर ऐसे ही गप्पे मारते रहते हैं, हमारे से नहीं होगा, दे आर IITs, वी कैन नॉट कम्पीट विद, वी आर फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज। Then he pushed me to apply. In the beginning, I started to apply. Many times I got rejection, but somehow I got one acceptance from South Korea. मैंने अप्लाई किया, उस टाइम मुझे पता नहीं था अप्लाई कैसे करना है। वहाँ पे एक होता है कि हमें अपनी इक्विवेलेंसी, अपनी डिग्री इक्विवेलेंट करवानी पड़ती है। That means कि the education that I took here is equivalent to their education system. मुझे वही पता नहीं था कि वो प्रोसीजर कैसे करते हैं, और I missed the deadline. तो वो भी नहीं हुआ। फिर मुझे थोड़ा अंदर से आया कि नहीं, हम compete कर सकते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट के लोगों के साथ, अब्रॉड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने एक जगह और अप्लाई किया, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग, विच इज इन चेक रिपब्लिक। दे इनवाइट मी फॉर
उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मुझे उस टाइम 10 मिनट के लिए अपना वर्क प्रेजेंट करना था। तो उस टाइम मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया था कि अगर आपने इंटरव्यू देना है तो आपको वहाँ क्या प्रेजेंट करना है। तो मोस्टली मैं अगर ऑनेस्टली आपसे बात करूँ, मेरा फिजिक्स का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, पर आई एम गुड इन द रिसर्च, आई कैन डू अ गुड रिसर्च। तो मैंने वहाँ पे सिर्फ जो प्रेजेंटेशन दी 10 मिनट की, मैंने सिर्फ अपनी रिसर्च के बारे में ही बात की कि हम ये काम कर रहे हैं और मुझे ये आता है। When I cleared that interview, then they invite me for the second round. Second round में था कि मुझे दूसरे और फैकल्टी मेंबर थे, उनके साथ कम्युनिकेट करना था। उस टाइम मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, ऐसा होता ही है, जो गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा है वो नहीं बोल पाता है, तो वो मेरे से नहीं हो पाया, सेकंड राउंड क्लियर नहीं हो पाया। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा अपना इंग्लिश इंप्रूव करना शुरू किया और उसी टाइम मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम करने की in UAE University. But the problem was they are the experimental people. Now I am a computational physicist. How I can match my work with them? Well, during the interview they said, okay, हम आपको experimental सिखा देंगे. We can teach everything. But we need something from you. We need computational work. We need the validation of our data. So here you can say there is no matter you are working as experimental, you are working as a computational. जो experimental वाले होते हैं उनको computational की जरूरत होती है, जो computational वाले होते हैं उनको experimental की जरूरत होती है। तो आप फील्ड किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, experimental, computational, theoretical modeling. Well, okay, someone say, okay, I am satisfied, I want to do research, but how I can start my journey? And I am 100% sure that the professor you have, they are eager to give you more hands-on exposure in the beginning of your journey. The thing is here, you need to develop your skill. When you develop your skill, then your next step is to apply. You can apply anywhere. It doesn't matter. Don't think that you are from the government college, you cannot compete with them. So when you are applying, make sure you have to prepare your document well. Like, I will talk about the abroad because I tried there a lot. So what I noticed, they will ask for cover letter, your CV, and some English test. Sometimes they don't call for the English test like IELTS, TOEFL, but mostly they need, because it is their requirement. So जब भी आप अपना कवर लेटर प्रिपेयर करते हैं कहीं भी बाहर अप्लाई करने के लिए, मैंने यहाँ पे एक सैंपल जो है छोटा सा आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है। सबसे पहले आप लिखिए रिस्पेक्टेड प्रोफेसर। ओके, हम जो है हम सर लिखते हैं, बट बाहर जो अप्लाई करते हैं अब्रॉड में, दे डोंट लाइक टू कॉल देम सर. You can say professor or doctor. Personally, I used professor. So okay, you can say respected professor. Then your next step is why you are writing this letter. Then you can say that I am interested to apply in the doctoral program in your research group in at Blah University. Then say what you are doing presently. Then during your post graduation, what you did. Like you did as a computational, I worked on C star, so I did phonon calculations. I did electronic properties, optical properties. So you can mention all the things. In addition to it, you can say if you have the knowledge of like Python or any other languages, you can write them. And after your master, if you have any experience, you can say I worked as. But make sure you are applying for a research proposal or a research-oriented university. Don't mention there like I worked as a clerk, because you are applying for the research position and your work for clerk. So I think it is not the good impression. So then you can write from where you got to know about them. And then in the last you can say if you are selected for this position, what you can do for them. You can say in journal I can work with full dedication. I can contribute in your research group using my previous knowledge. Blah blah. This is the cover letter. Okay. Then next step is to prepare your CV.
you need to prepare a CV, but good CV. In good CV, what you need to include your education, your work experience. You can include your master work in this. That if you worked something like I work in ab initio calculation of CRS2, then you can say I worked on CRS2 during my master, something like this. Then the list of publication. Mostly, to be honest, all the universities they don't care about anything. They care about your publication. If you have publication, then you can go. Then the conferences and workshops that you attended and the research experience, you can include your MSc as well here. Then the technical skill like the Python and other things. Okay, so next is English test. Mostly, if I can say, if you can go for the IELTS test, you can do and apply abroad. Mostly, I know some universities like in the Europe, they don't need the IELTS test as well. But mostly I saw they need some, not IELTS, you can go for Duolingo, you can go for TOEFL or any IELTS test, any English test. So okay, your CV is ready, you have skill, and you want to apply. But the problem is how you can find the position, how you can say how you can find the good position or good universities. So there are some websites I mentioned here like Psyche Network. You can log in there, you can put your email there, and everyone, I think they posted the position on this website. And if you log in here, this website directly send that position to your email. Another website is Nature Career. You can explore it. Many people posted the opportunities here. You can explore them. And there is another website, findyourphd.com. So okay, so or maybe you can directly go to the website of any university. Like I will show you one example here. Like this Stanford University. Directly write Stanford University. Go there, check their website. Like in this website, in this Stanford University, they mentioned some areas of research what they are doing. So first you need to find the area that speaks to you. Like biomaterials, if you are working in biomaterials. Let's say I want to check the novel characterization of method. Okay, I open it, then go down. You can see the research group that is related to this field. And in the abroad, most of the professors have their own research group, their own website. They post it there. So let's say I want to open this research group. Okay, so here you can see about their research, and see here they listed the open positions here. You can explore it, you can read about it. If it is related to your area, you can try to reach the professor. So the main thing is here, you need to develop your skill as a researcher, as a scientist, or as an explorer. Okay, so don't think about it like we cannot complete them. I would like to thank Dr. Arun Kumar, who guided me a lot, who I can say is my backbone. He helped me in each and every step. So I think this is from all my side. For future communication, you can contact me on this this email if you have any question or something related to applying in a big institution. That's all. Thank you very much. अच्छा नरेंद्र जी, ये बताइए, जैसे आप कह रहे थे कि आपको जब अप्लाई करना है तो ये स्ट्रेस ऑन पब्लिकेशंस. Yes. अब एक बच्चा जो जस्ट एमएससी कर रहा है जी, एमएससी के इमीडिएटली बाद उसके पास क्या ऑप्शन है? एमएससी एग्जैक्टली बात की ये ऑप्शन है. अगर आपके पास एमएससी ड्यूरिंग एमएससी तो पब्लिकेशंस वगैरह तो जो हमारे
यहाँ का सिस्टम है एजुकेशन का, हम यहाँ पे मास्टर के टाइम जस्ट एक प्रोजेक्ट करते हैं, दैट वी विल फिनिश, यू कैन शो दैट प्रोजेक्ट दैट I worked on this project and I did this, I know this. But in the abroad or most the big institution, I think maybe in IIT or something, if you are doing the master, it is must mandatory, you need to publish your work. नहीं वो ठीक है, वहाँ की बात तो हुई ना, लेकिन जो हमारे यहाँ से बच्चा निकलेगा, मान लो गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बिलासपुर से जो बच्चा निकलता है, उसके लिए क्या ऑप्शन? उसके लिए मैम जैसे अब MSc के लास्ट में होता है कि हमें एक प्रोजेक्ट में काम करना होता है, इट्स काइंड ऑफ थीसिस, उसमें हमें बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है, लाइक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, मटेरियल्स की, तो हम उसी चीज़ को प्रेजेंट करेंगे। जैसे मुझे फर्स्ट टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया उस टाइम मेरे पास पब्लिकेशन नहीं थी, तो मैंने क्या प्रेजेंट किया, मैंने उनको जो मैंने मास्टर में काम किया एज अ रिसर्चर, मैंने वही प्रेजेंट किया, लाइक I worked on this material, I did this properties. So I talked about only research because I was applying for the research position. अच्छा, मतलब जैसे हमारे जो बच्चे पास आउट होंगे, अगर उनका किसी का इस तरह का कोई विजन होता है, इस तरह का कोई ड्रीम होता है कि दे वांट टू गो फॉर रिसर्च, yes. ना एक तो ये होता है कि ठीक है MSc है, उसके बाद जैसे अरुण जी कह रहे थे कि पता नहीं हम क्यों पढ़ रहे हैं, बस एडमिशन ले ली कि फिर BSc कर ली, हमारा टाइम भी ऐसे ही था, BSc कर ली तो क्या है कि MSc कर लेते हैं, तो MPhil कर लेते हैं, फिर MPhil कर लेते हैं, तो फिर अब क्या करना है, तो टेस्ट देते हैं, चलो जो भी था, मतलब हर एक बच्चे का एक अपना वो होता है। यस, आई वांट टू। मार्मी से इस बार ना 4 ग्रुप थे हमारे पास रिसर्च, मतलब MSc में जो लास्ट सेमेस्टर हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें से 2 पेपर तो हमारे एक्सेप्ट हुए यहाँ पे DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, बार्क वाले कंडक्ट करवाते हैं। पेपर का मतलब कि ड्यूरिंग MSc, यस सर, मतलब जिसमें आप काम कर रहे हैं यू कैन पब्लिश दैट, उसको पब्लिश कर सकते हैं। हमें प्रॉब्लम ऐसी ढूंढनी है जो पब्लिशेबल हो, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, छुट्टियां भी लगानी पड़ती हैं बीच में, तो वो 2 रिसर्च पेपर हमारे अग्रसेन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल वर्कशॉप हो रही है, वो भी मटेरियल साइंस में वो पेपर पब्लिश होंगे, तो 4 पेपर कुमारवी से हमारे पब्लिश हुए स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स ने ज़्यादा काम किया उनको एज ए फर्स्ट ऑथर मैंने रखा था। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप किस इंटेंसिटी से काम कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से नरेंद्र को मैं यही बोलता था कि लोग ये देखेंगे आपको आता क्या है, तो वो रिसर्च पेपर ये बताएगा, क्योंकि जब पीयर रिव्यू में जो पेपर जाता है किसी साइंटिस्ट के पास, तो वो पूरा देखता है कि वो नई प्रॉब्लम है कि नहीं, आपको काम करना आ रहा है कि नहीं। ये एक्सपेरिमेंटल में भी आप कर सकते हो, थ्योरेटिकल में भी कर सकते हो। जैसे डॉक्टर घनश्याम एक्सपेरिमेंटलिस्ट हैं हमारे पास, तो डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी प्रॉब्लम उठाते हो। आप भाग दौड़ तो आपको करनी ही पड़ेगी, अभी नहीं करोगे कुछ टाइम बाद करोगे, तो इस तरह से पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसी वजह से मास्टर्स में प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट हुआ था। और GSC के जो बच्चे हैं, ये जो प्रोजेक्ट वर्क है आपका, ये 3rd सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में है, 4th में, तो इसमें से आप एक रिसर्च पेपर निकाल सकते हो। अच्छा, और जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं, BSc के बच्चे हैं, वो मास्टर के लिए भी सेम यही प्रोसीजर रहता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट उस टाइम होता है कि जब आप इंटरव्यू लेते हैं वो थोड़ा फिजिक्स ओरिएंटेड होता है, दैट्स द डिफरेंस। और सेम यही प्रोसीजर रहता है, आप अब्रॉड जा सकते हैं, मास्टर स्टूडेंट, मतलब BSc स्टूडेंट मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा है। मुझे लगता है कि जो हमारे कोई बच्चे MSc इस टाइम 3rd सेमेस्टर वाले बैठे हैं, ये चीज़ सच में पेनफुल है कि आपके लिए इतना अच्छा लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया है और बच्चे यहाँ पहुँचे नहीं। सर, मेरी तरफ से आपको ये डायरेक्शन है कि जो बच्चे आए नहीं ना आज इसके, उनको स्पेशल फाइन इम्पोज किया जाए। नो, दिस इज रॉन्ग। कब की दिवाली खत्म होगी, इतनी कम क्लासेस हो पाती हैं ड्यू टू मैनी रीजंस, और एक स्पेशल लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें एक मतलब डेडिकेटेड पर्सन आपके सामने है और स्टूडेंट्स में किसके लिए है ना, वो लोग ही नहीं है जिनके लिए जिनको हम इमीडिएटली कुछ इम्पार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आप बैठे हैं, आपको फ़ायदा होगा डेफिनेटली इस चीज़ का, लेकिन वही बात है कि जो होने चाहिए थे वो है यहाँ, उनको स्पेशल फाइन इम्पोज कीजिए। और मेरे पास आनी है, पूरी लिस्ट आएगी, मैं साइन करूँगी उसके साथ। अच्छा, थैंक यू। मैं आपसे थोड़ा सा और आपके बारे में जानना चाहती हूँ, आप कब गए वहाँ पे? मैं 2019 में MSc की, और उसके बाद मैं एज ए प्रोजेक्ट फेलो और रिसर्च असिस्टेंट काम कर रहा था छत्तीसगढ़ में। 8-9 मंथ के बीच में उसका कोविड स्टार्ट हो गया, उसके बाद मैं घर आ गया। मैं एज अपनी अकेडमी मैंने स्टार्ट की ट्यूशन अकेडमी, और साथ साथ में सर के साथ मैं काम कर रहा था।
और उसी बीच में मैं वही जो मैंने मास्टर में किया था वही मैं प्रेजेंट करता जा रहा था, मतलब मैं अप्लाई करता था, देन आई विल वेट, वो इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते थे, समटाइम दे कॉल फॉर सेकंड राउंड, समटाइम दे रिजेक्ट। सो ऐसे करके धीरे धीरे ये स्किल आती गई, मतलब पता लगता गया कि नहीं हम अप्लाई कर सकते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में भी। और ये था कि मुझे पता नहीं था, ये सारी चीज़ें मुझे बाद में पता चली है, जो ये अप्लाई कैसे करना है, कवर लेटर। मुझे एक बार एक प्रोफेसर ने बोला कि यू हैव टू सेंड योर मोटिवेशन लेटर, आई डोंट नो अबाउट मोटिवेशन लेटर, हाउ टू राइट। सो मैंने कुछ इंटरनेट पे टेम्पलेट कुछ नहीं मिलता इंटरनेट पे भी, मतलब बहुत। फिर मैंने ये एक पोस्ट डॉक थे पर्सन, उनकी हेल्प लेके एक फॉर्मेट तैयार किया कि कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो फिर आप फाइनली आपकी फ्लाइट कब थी? रिटर्न। हाँ, मतलब आप कब गए अल्टीमेटली उस यूनिवर्सिटी को, आपने कब ज्वाइन किया? एज अ रिसर्चर मैंने, एज अ रिसर्च असिस्टेंट मैंने 23rd of April 2021। 21? यस। मतलब 1.5 ईयर आपको हो गया वहाँ पे। तो वहाँ मतलब जो यूनिवर्सिटी है उसमें आपके गाइड है कोई? यस। मतलब अल्टीमेटली योर रिसर्च विल लीड टू योर PhD डिग्री? यस। You are pursuing your PhD degree? Yes, yes. Research means he is pursuing PhD Yes, degree. exactly. Okay. ठीक है, तो उसमें क्या आपको स्टाइपेंड मिलता है, क्या है? जी मैम, स्टाइपेंड मिलता है। कितना मिलता है इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग? इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग मैम 1,50,000। अच्छा, मतलब कोई अगर हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप रिसर्च करते हैं, PhD करते हैं, तो भी स्टाइपेंड होता है आजकल, है ना? सबको ही होता है स्टाइपेंड। 8 या 9 हज़ार है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, और अगर आपका GRF होता है तो 32,000 है। मतलब जो बच्चा MSc करने के बाद PhD परस्यू करेगा, PhD परस्यू करने का मतलब आप रिसर्च एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे अपने आप को, तो आपको एक पॉकेट मनी तो मिलेगी, है ना? पॉकेट मनी तो मिलेगी। वो अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में होते तो 8-9 हज़ार मिलती है। स्टेट यूनिवर्सिटीज में नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अर्न करनी पड़ेगी, इसका 8-9 मतलब अपने लिए अर्निंग करनी पड़ेगी। पर जिनको सबको नहीं मिलता, सबको नहीं, पहले भी नहीं था, पर मैंने सोचा शायद अब GRF वालों के लिए ही है। JRF की फुल फॉर्म बताइए इनको। JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप। नेट का टेस्ट देना पड़ता है ना, क्वालिफाई करना पड़ता है। नेट का टेस्ट होता है, जो हायर रैंकिंग वाले होते हैं उनको GRF बोलते हैं, वो बड़ी कम परसेंटेज होती है। तो अगर GRF होता है तो 32,000 फेलोशिप मिलती है PhD करने के लिए पर मंथ। तो जो बच्चा क्वालिफाई करेगा उस टेस्ट को और साथ में वो PhD कर रहा है तो उसको तो मिलेगा, लेकिन जो क्वालिफाई नहीं कर पाता है उसको नहीं मिल पाएगा, है ना? तो वो थोड़ा सा एक होता है कि एक टाइम के बाद आपको सर्वाइव करने के लिए या तो पेरेंट्स पे डिपेंड करना पड़ता है या फिर आपको अर्न करना पड़ता है। चलो साइंस के बच्चे अर्न भी कर सकते हैं, कुछ आप और छोटे बच्चों को गाइड कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्यूशन पढ़ा लेते हैं बच्चों से, मतलब अपनी जो एबिलिटी है उसको फिर आप ट्रांसफ़र करते हैं औरों को। लेकिन ही इज़ परसुइंग हिज PhD, he is doing research work, he will get finally PhD degree and during this period he is getting good enough stipend। तो जैसे इन्होंने बताया कि 1,50,000 1.5 लाख रुपए। हाँ, 1.5 लाख, मतलब जितनी समझो कि सैलरीज भी नहीं होती। जब आप हायर पोजीशन पे पहुंचते हैं तब जाकर के हमारी सैलरीज इस तरह से होती है। तो उस तरह का इनको एक मतलब इंसेंटिव भी है साथ में कि आप एक तरफ आपकी PhD भी हो जाएगी और प्लस यू आर अर्निंग गुड इनफ फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर सेटिस्फैक्शन, है ना? तो ये भी एक एडेड मतलब एक इंसेंटिव है, एडेड एडवांटेज है कि अगर आप इस तरह का कुछ सोचते हैं कि आपको रिसर्च या PhD हायर मतलब किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से परस्यू करनी है, तो जो जो इन्होंने स्टेप्स बताए वो तो करने ही पड़ेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर इस तरह की आपकी अचीवमेंट भी होगी। आप वहाँ रहते कहाँ हैं? हॉस्टल अवेलेबल है, हॉस्टल अवेलेबल है। अच्छा, आपकी जो PhD आप परस्यू कर रहे हैं, आप मतलब कितनी ड्यूरेशन का आपका लगता है आपको कि इट विल टेक? 3 ईयर में मोस्टली हम जो है सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, बट मेरी जो फंडिंग है वो 4 ईयर की है। अच्छा अच्छा। तो अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर नॉट ईयर। तो मे बी आई विल थिंक टू फिनिश इन 3 years और मे बी 3.5 मैक्सिमम। अच्छा, उसके बाद फिर जब आपकी PhD कंप्लीट हो जाएगी तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है? जॉब अपॉर्चुनिटी उसके बाद प्लीज सब सुने ध्यान से,
जब अब की बात PhD करें, रहती है उसके बाद आपके पास बहुत सारी ऑप्शन ओपन हो जाती है, लाइक यू कैन गो फॉर प्रोजेक्ट फेलो, सॉरी पोस्ट डॉक्टर एज अ सीनियर साइंटिस्ट, यू कैन वर्क इन द कंपनीज, बिग कंपनीज। तो उसके बाद बहुत सारे डोर, यू कैन गो फॉर टीचिंग, बहुत सारे गेट जो है ओपन हो जाते हैं जब आपके नाम से डॉक्टर लग जाते हैं। मोस्टली जो मैंने बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसे स्टूडेंट कह सकते हैं उन्होंने 40 साल हो गए वो रिसर्च ही कर रहे हैं जी। तो उन्होंने अपना करियर रिसर्च में बनाया ना? जी मैम। अच्छा, ठीक है। और आप बच्चे कुछ पूछना चाहें, पूछो। कोई भी क्वेरीज हैं आप लोगों की वो पूछ सकते हो। इसका नाम ही इंटरेक्टिव सेशन, मैंने तभी बोला था कि इसमें मतलब स्लाइड्स हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, जो भी मन में क्वेश्चन है पूछिए आप लोग। बच्चों साइंस पढ़ते हो आप और कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, इट्स वेरी स्ट्रेंज। कुछ तो सोच रहे होंगे, कोई भी छोटे से छोटा सिली क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हो। अच्छा, ये बताओ, आप में से PhD करने का किसी का ड्रीम है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। और मतलब जैसे मैं थी तो मेरा PhD करने का ड्रीम नहीं था, तो उसमें हमारा नहीं था, बड़ी सच्ची बात है। कुछ और था कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो PhD मतलब जब मैं स्टूडेंट थी तो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें PhD बहुत कम लोग भी करते थे। आई थिंक उस टाइम टोटल 5-6 रिसर्च स्कॉलर थे पूरी यूनिवर्सिटी में, 5-6 रिसर्च स्कॉलर्स थे, और बाकी हमारा इतना ही था कि MPhil करेंगे और वी विल बिकम एलिजिबल फॉर द कॉलेज टीचिंग, और बाकी कुछ और थे कि कम्पिटिटिव के लिए तो आप BSc MSc के बाद आप एलिजिबल होते ही हैं। लेकिन अब वक्त बदल गया है ना। अब अगर आपको सपोज अगर आपको लगता है कि आपने अपना करियर बनाना है इन टीचिंग, बेटा क्या बनाना चाहते हो, आपका क्या है, क्या एम है, क्या करियर बनाना चाहते हो? बीएड से आगे बढ़ो बेटा, मैं पूछ रही हूँ आगे क्या करना चाहते हो? कर दिए बीएड कर दिए, चलो तो ठीक है, फिर जो भी डिग्री होती है बेटा वो काम ही आती है। लेकिन फर्दर क्या सोच रहे हो आप? अभी तो आप MSc के स्टूडेंट हो ना, क्या है आपका एम, क्या है? फिर वही अगर से हमारी बात पूरी हो जाती है कि फिर एडमिशन ले लिया है, चलो MSc कर लेंगे, फिर देखेंगे। क्यों ऐसा? आप बोलो बेटे नेक्स्ट जो आपका क्या है? बैठो बैठो बैठो। मतलब हम तो जस्ट एक बात कर रहे हैं कि शायद कुछ चीज़ निकले। हाँ आप बेटे? एकेडमिक्स में मीन्स व्हाट? जैसे कि सर ने कहा, अच्छा, मतलब ऐसे हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, है ना? तो मतलब उसके लिए अगर आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, कुछ इस तरह की टीचिंग करना चाहते हैं, इवन अगर आपका ड्रीम है कि आप एक कॉलेज टीचर बनना चाहते हैं, हो सकता है आप सुरजीत सर को आइडलाइज करते हो, या ये अपने अरुण सर हैं, या ये घनश्याम जी हैं, इनको आइडलाइज करते हैं, तो देखो अपनी PhD से अब मतलब बिना PhD के टीचिंग में कोई करियर नहीं है, आपको PhD करनी होती है। तो PhD करने के लिए जो ये बता रहे हैं एक्चुअली वो ये है कि PhD करने के लिए हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज़ तो आपके पास अवेलेबल हैं ही। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो मैनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो पहले नहीं हुआ करती थी। तो अपनी यूनिवर्सिटीज़ तो बेटा आप लोगों के पास हैं ही हैं, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ एब्रॉड भी हैं। ये है एक्चुअली जो थीम है आज का, यही नहीं है कि अगर आपने हायर स्टडीज़ में जाना है ना, MSc करने के साथ साथ, तो फिर आपको MSc के साथ साथ ही प्लान करना पड़ेगा। आपको एक प्लानिंग बना के चलना पड़ेगा कि आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो आप कहाँ जाना चाहते हैं। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो फिर जो इन्होंने स्टेप्स आपको बताए हैं, यू विल हैव टू फॉलो दो स्टेप। और जो अभी इस तरह का माइंड मेकअप नहीं भी कर पाए हैं, वो जैसे अरुण सर आपके साथ हैं, सुरजीत सर हैं, सब हैं, उनके थ्रू आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के आपके और भी कांटेक्ट्स बन सकते हैं। तो आप ऐसे अपने लिए मतलब एक रास्ता आप अपने लिए बना सकते हैं। बाकी अरुण सर ये नहीं आप लोगों ने सोचने के छोटे इंस्टीट्यूट में यहाँ पे ये नहीं है वो नहीं है। क्वेश्चन ना मन में पैदा होता है, रिसर्च क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है मन से आता है।
जब आप सोचोगे, शांत होगे, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि आप क्या करना चाहते हो। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन है, अब जैसे हमने टाइटल रखा था अपॉर्चुनिटीज इन मटेरियल साइंस, हमने कहीं मटेरियल साइंस की बात नहीं की। करने को मैं मटेरियल साइंस पे भी बोल सकता है डॉक्टर, ये मिस्टर नरेंद्र कैन टॉक ऑन द मटेरियल साइंस, नैनो मटेरियल्स पे बोल सकते हैं, बट ये हट के है पढ़ाई से कि आप क्या कर सकते हो। मैं इनको कई बार बोलता है कि आपको अगर कुछ आता होगा, बाहर ये पूछेंगे कि आपको क्या आता है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों के साथ, मैं फील करता हूँ, जो मेरी फीलिंग है, ऑल इंडिया लेवल पे कितने बच्चे बैठते हैं नेट के फिजिक्स में, है कोई आइडिया किसी को? हजारों में बैठते हैं। उसमें से मेरे ख्याल से थोड़े से बच्चे नेट क्वालिफाइड होते हैं, उसमें बहुत कम परसेंटेज जेआरएफ क्वालिफाइड की होती है। पूरा के पूरा बच्चों का पोटेंशियल जो है पूरी फिजिक्स को याद करने में लग जाता है। मतलब फिजिक्स इतना वास्ट सब्जेक्ट है, कई बार पता नहीं लगता, पढ़े नहीं तो याद नहीं रहता। इतनी सारी डेरिवेशंस, इतनी सारी चीजें करनी है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, और बच्चों का पूरा पोटेंशियल जेआरएफ में लगा जाता है नौकरी के लिए। नहीं हुआ 2-3 साल, कई बच्चे 3-4 साल हो गए लगे, हमने जेआरएफ करना है, जेआरएफ करना है, नेट करना है, नहीं हो पा रहा है। बट एक और अपॉर्चुनिटी भी है कि अपनी वो एनर्जी वहां लगाने की बजाय आप थोड़ा सा फोकस हो जाओ, तो आप रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, खुद कर सकते हो। आजकल इंटरनेट है, हर चीज अवेलेबल है, तो आप खुद कर सकते हो वो सारी चीजें, हेल्प हम करेंगे। मैं सुबह 9 बजे आता हूं, 5 बजे जाता हूं, ठीक है? आप कभी भी मेरे साथ मिल सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो अगर आपका मन है। हाँ, मेरा जो फील्ड ऑफ रिसर्च है वो है कंप्यूटेशनल फिजिक्स। लैपटॉप पे मैं सिमुलेशन चलाता हूं, ठीक है? नैनो मटीरियल्स की सिमुलेशन, नैनो ट्यूब का नाम सुना हुआ है, बक्की बॉल का नाम सुना हुआ है। उनका स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज का पता करते हैं कि ये कैसी होंगी प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो वो सारी चीजें हम कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं। डॉक्टर साहब नैनो फिल्म के ऊपर एक्सपेरिमेंटल काम करते हैं। तो बोलने का मतलब ये कि आप आगे आओ, यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। अभी भी कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि क्या मन में चला हुआ है, क्या क्यों करना चाह रहे हो। ये मास्टर्स और बीएससी अपने आप में बड़ी डिग्रीज हैं, आप बहुत हार्ड पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको उसके रिस्पेक्टिव एफर्ट थोड़ा सा और करो तो आपको और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आर अवेटिंग फॉर यू। ये एग्जांपल है। मैं 12वीं में भी पिछली बार भी करना चाह रहा था, बट जो रिसर्च पेपर लिख रहे थे, नरेंद्र इज आल्सो विद मी, और भी बच्चे काफी थे। आई थिंक हमने पूरी इंटेंसिटी के साथ एक महीना लगा के वो 3-4 पेपर भेजे वहां डीए में, बड़ी मुश्किल से। काम तो करना पड़ेगा, और 4 नई चीजें आप सीखते। हाँ, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी आपको, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आई थिंक नरेंद्र को अपनी आईलेट्स का जो टेस्ट क्वालिफाई किया उसकी जर्नी बतानी चाहिए कि कितनी मेहनत करनी पड़ी और कैसे कैसे, मतलब जब उसका टेस्ट नहीं आता था, कि गूगल मीट पे हम बात करते थे, फिर जब रिजल्ट आता था मैं भी बरीड था कि मैंने बोल तो दिया, रास्ता मिल नहीं रहा है। भरोसा तो था मुझे, बट रास्ता नहीं मिल पा रहा था। नरेंद्र थोड़ा सा अपना आईलेट्स का टेस्ट होता है इंटरनेशनल लेवल पे, जब आपने जाना है तो आपको इंग्लिश का एक टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। जीआरई हुआ, जीआरई, आईलेट्स से एक दो और भी नरेंद्र ने भी बताया, तो ये थोड़ा सा बताएगा। तो जो इंग्लिश का टेस्ट होता है, अभी में आईएलसी करें आप टॉप है, डुओलिंगो वगैरह बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़, मोस्टली जो यूनिवर्सिटी जो आईएलस और टॉप है जो एक्सेप्ट करती है। तो जब मैं दे रहा था, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, मैं 2 बार फेल किया हूँ आईएलस का टेस्ट, मैंने 3rd टाइम निकाला है। तो मैं एक्चुअली मैं उस टाइम मेरी डेडलाइन थी, और हमारी यूनिवर्सिटी में हर 6 मंथ में जो है पोजीशन ओपन होती है एज अ पीएचडी और एज अ रिसर्चर। मैं अब शायद मैंने 2 महीने पहले तैयारी की थी, जो डेडलाइन थी उससे 2 महीने पहले मैं टेस्ट दिया, मैं फेल हो गया। मैं सर को कॉल किया कि सर नहीं हुआ। सर ने बोला फिर से दो, फिर से दिया 15 दिन के अंदर, फिर से नहीं हुआ। फिर सर ने बोला थोड़ा रुक के फिर से एग्जाम दो। फिर मैंने 1 मंथ के बाद दिया और लकीली वो निकल गया।
उसके बाद किसी ने में से आज से पूछा भी नहीं, दे नीड जस्ट क्राइटेरिया, इट्स जस्ट अ क्राइटेरिया, उनको आइल्स चाहिए था 6.5, दैट्स ऑल, वो उस पर पूछते भी नहीं आइल्स के बारे में। तो साथ साथ में अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करते रहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो बस यही है। तो कोई क्वेश्चन नहीं अब किसी का अभी तक भी? एक क्वेश्चन तो आना चाहिए एटलीस्ट। थ्योरेटिकल मॉडलिंग जो है, जो हम रिसर्च करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट है, जब लैब में जाते हैं, ठीक है, आप सैम, टैम, XRD वगैरह ये सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके आप मटेरियल की प्रॉपर्टीज निकालते हैं। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल मॉडलिंग मींस आप पेन पेपर का यूज़ करके इक्वेशन ड्राइव करके आप प्रॉपर्टीज फाइंड करेंगे उस मटेरियल्स की, या जो या प्रॉब्लम डिफाइन कर रहे हैं। पेन पेपर लाइक इक्वेशन, काइंड ऑफ यू कैन से इक्वेशनों का यूज़ करके हम प्रॉपर्टीज का जो है निकालते हैं या उनको एक्सप्लोर करते हैं। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। क्रॉनिंग पेनी मॉडल पढ़ते हो आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, ठीक है, और ब्लॉक थ्योरम्स का और पीरियोडिक पोटेंशियल का हम यूज़ करते हैं। पीरियोडिक पोटेंशियल को टेक केयर करने के लिए क्रॉनिंग पेनी मॉडल यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो हमने एक वन डायमेंशनल लिया एंड देन उसके ऊपर पीरियोडिक पोटेंशियल अप्लाई किया, वन डायमेंशनल ही था बल्कि वो, ठीक है। इसी तरह फोनोन का जब आइडिया आता है तो उसमें भी हम यही करते हैं। तो वो क्या, वो एक थ्योरेटिकल मॉडल है। हमने माना कि ये एक एटम यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा हो और पोटेंशियल पीरियोडिक है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास बिहेव करेंगे, पीरियोडिसिटी को हम कैसे टेक केयर करेंगे, उसके लिए हम ब्लॉक फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो वहीं से तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैंड गैप का कंसेप्ट आया, तो वो तो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन थी, ठीक है। अब ये चीज़ आप अगर करनी हो वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल मटेरियल के लिए, तो आप एक्सपेरिमेंटली ट्यूब्स आ गई वन डायमेंशनल मटेरियल्स में, नैनो ट्यूब्स आज के टाइम में, ठीक है। कंप्यूटर पे आप भी सिमुलेशंस का यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पे हम श्रोडिंगर वेव चीज़ है, यू कैन डू एक्सपेरिमेंटल, यू कैन डू कंप्यूटेशनल और यू कैन डू थ्योरेटिकल, चीज़ एक ही है। आज ये हो गया कि कंप्यूटर की पावर इतनी बढ़ गई है कि जो चीज़ हम लैब में बना रहे हैं उसके आसपास की चीज़ हम कंप्यूटर पे भी सिमुलेट करके देख ले रहे हैं। तो एक एज मिली हुई है रिसोर्सेज को वेस्ट करने की, जब हम पहले उसकी प्रॉपर्टीज पता कर लेते हैं फिर लैब में जाते हैं। कई बार नया मटेरियल लैब में बन जाता है तो उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज जो लैब में नहीं हो सकती उसको हम कंप्यूटेशनली कर लेते हैं, तो पता चल जाता है मटेरियल का, ठीक है। तो ये है सर, और मटेरियल साइंस के अलावा और कौन से एक्चुअली मटेरियल साइंस जो बहुत बड़ा एरिया है मटेरियल्स का। मैंने जो मेनली आपको 3 बताया, इसमें केमिकल और बहुत सारी चीज़ें आती हैं मटेरियल साइंस में। तो मुझे सिर्फ मटेरियल साइंस, क्योंकि मैं मटेरियल पे वर्क करता हूँ, नैनो मटेरियल्स पे, तो मुझे इसी का ही आइडिया है। तो आप किस कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन आप अपना? जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बात की ना सर, आइंस्टाइन, हाँ, थ्योरेटिकल वर्क था जी, तो एक्सपेरिमेंटल में, तो किसने आता है? वो एस्ट्रोफिजिक्स में आता है, एस्ट्रोफिजिक्स जी। तो वो उसकी रिसर्च की बहुत सारी ब्रांच, एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स है, हाई एनर्जी फिजिक्स आ जाता है, डिफरेंट ब्रांचेस आ जाती है। और उसमें से नैनो मटेरियल्स पे जो काम करते हैं, जो मटेरियल्स पे काम करते हैं, नैनो मटेरियल्स पे। अब रिलेटिविटी का मैं बताऊं आपको अगर ना, तो रिलेटिविटी के ऊपर आइंस्टाइन ने उस टाइम काम किया तो उतना वो नहीं हो पाया, बट उसके बाद उसके सिग्नेचर्स देखे गए, ठीक है। एक तो हाई एनर्जी फिजिक्स में, पार्टिकल फिजिक्स में उसके सिग्नेचर देखे गए, और अभी रिसेंटली जीपीएस जब डिज़ाइन हो रहा था, इसके सॉफ्टवेयर जब डिज़ाइन हो रहे थे, तो सिंपल फिजिक्स के फॉर्मूले यूज़ किए गए जीपीएस को डिज़ाइन करने के लिए, तो इतनी एक्यूरेसी नहीं थी। उसके बाद जब रिलेटिविटी को उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया तो प्रिसीजन और बढ़ गया, तो रिलेटिविटी को इनकॉर्पोरेट करने का ये बेनिफिट हुआ। तो वो उसके हमें दिखा कि नहीं, रिलेटिविटी रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि उसकी वजह से एक्यूरेसी हैज़ बीन इम्प्रूव्ड। तो वो एक्सपेरिमेंटली हमने फिर देखी, खुद डिज़ाइन की चीज़ें जब जीपीएस को डिज़ाइन किया गया, ठीक है। तो वो मिलती थ्योरी और एक्सपेरिमेंट मिलते जुलते होते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो देन वी नीड टू मॉडिफाई इट, थ्योरी को हमें मॉडिफाई करना पड़ता है, ठीक है। ये है इसमें। थैंक यू। बीएससी वाले, हाँ, जैसे टॉपिक हो ना चूज करना हो कोई, तो किस तरह से करते हैं, मतलब क्या क्या ऑप्शन रहते हैं?
एक्चुअली उसके लिए आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर जो है पढ़ने पड़ते हैं, देन आप सर से डिस्कस कर सकते हैं कि हम इसमें और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक अभी जैसे मेरा काम जो है, मैं बोरोफिन को एज अ हाइड्रोजन स्टोरेज यूज़ कर रहा हूँ। जब मैंने बोरोफिन के बारे में पढ़ा, बोरोफिन मोनोलेयर मीन्स 2D काइंड ऑफ शीट, उस पर बहुत सारे लोगों ने हाइड्रोजन स्टोर किया हुआ था। मैंने क्या कि उसमें एडिशनल जस्ट एक और लेयर लगा दी, बाई लेयर बना दिया, एक शीट थी, एक और शीट रख दी, और उसमें फिर चेक किया कि ये हम इसमें हाइड्रोजन स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो एक तो रिसर्च पढ़ना पड़ेगा कि इसमें लोगों ने क्या क्या काम किया है और कितना किया है, और उसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी की रिसर्च को रिपीट नहीं कर सकते, इस अनएथिकल है। बीएससी वाले बच्चे, छोटे बच्चे ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, ये लग नहीं रहे छोटे हैं, बड़े हो गए हैं मेरे को लग रहा है। सर जैसे ना सर हम मतलब इंसेंटिव के लिए हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे नेट क्लियर करते हैं, वैसे उधर भी कोई टेस्ट होता है जैसे आप कर रहे हैं? उधर जो है, जैसे मैंने बताया आपको, एक तो आइल्स चाहिए आपको, हमको इंग्लिश के लिए इंग्लिश का चाहिए होगा, और दूसरा साथ में वो मोस्टली आपकी पब्लिकेशंस देखते हैं, और मतलब वो रिसर्च से रिलेटेड देखते हैं आपको कितनी रिसर्च आती है। आपने कोई मास्टर में कोई प्रोजेक्ट किया तो उसके बारे में पूछेंगे आपने क्या किया, कैसे किया और क्यों किया। तो मोस्टली वो फिजिक्स नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे। इंटरव्यू होता है जी, नॉर्मल इंटरव्यू होता है। जस्ट उसमें आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं कि आप अपना प्रेजेंट करो, अपना वर्क जो आपका है आप प्रेजेंट करो कि मुझे ये आता है और मैं ये करता हूँ और मेरी ये फील्ड है। उस बेस पे फिर आपको इवैल्यूएट करेंगे। जैसे हम मास्टर्स करने के लिए कैसे जा सकते हैं? मास्टर के लिए सेम प्रोसीजर है, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ। जैसे मैंने स्टैनफोर्ड का एग्जाम्पल दिया, उसमें सबसे पहले तो एरिया देखो जिसमें आप इंडस्ट्री जो बायो मटीरियल्स में या जो भी आपका एरिया है। फिर सेम प्रोसीजर, अपना एक CV प्रिपेयर करो, अपना एक कवर लेटर प्रिपेयर करो, और साथ में अगर आपके पास आइल्स टेस्ट है तो वो भी साथ में। वही 3 चीज़ें अटैच करके आप जो उसमें पोजीशन होगी उसमें दिया होता है कि आपने इस प्रोफेसर को कम्युनिकेट करना है, वहाँ डायरेक्ट प्रोफेसर कम्युनिकेट करते हैं। आप हमारा ऐसा नहीं होता कि वेबसाइट पे जाके वो वैसा प्रोसीजर नहीं होता है मोस्ट यूनिवर्सिटी में, वहाँ डायरेक्ट प्रोफेसर आपसे कम्युनिकेट करते हैं, तो बहुत इजी प्रोसेस रहता है। और एक सही यूनिवर्सिटी का चयन कैसे करें सर? उसके लिए एक रैंकिंग होती है, QS रैंकिंग, वर्ल्ड QS रैंकिंग। लाइक अगर मैं अपनी जैसे लेट्स से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और किसी कोई भी यूनिवर्सिटी है, तो आप जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसके आगे आप लिखो QS रैंकिंग, इट्स वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड रैंकिंग। ये बताता है कि आपकी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में कितने नंबर पे है। जैसे QS रैंकिंग 2022 इज इन 3, तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी है। तो आप ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब जो भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसमें देखो कि वो यूनिवर्सिटी कितने उसमें है, कितनी रैंकिंग में है। मोस्टली अगर जो मुझे पक्का श्योर नहीं है, अगर आप टॉप 500 यूनिवर्सिटी से अपनी PhD या मास्टर करते हैं तो आपको इंडिया में आके जब आप यहाँ अप्लाई करेंगे देन आपको यू डोंट नीड द एनी नेट और JRF एग्जाम। तो और तो नहीं किसी का क्वेश्चन, नहीं तो फिर क्लोज करते हैं, ठीक है। सर इंडिया में कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड है? मोस्टली IITs है, आईसर है, हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च जैसे मोहाली में है, पुणे में है, JNCSR है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च है, कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज का कोई इंस्टीट्यूट है कलकत्ता में, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद, ठीक है। बट वो सारे आपको सबसे पहले वो JRF और वो निकालना पड़ेगा, बिकॉज IISc बेंगलोर वो अपना बड़ा हार्ड टेस्ट कंडक्ट करते हैं। सर विदाउट JRF और नेट के बिना हम एडमिशन ले सकते हैं रिसर्च में? इन इंडिया में तो इंडिया में यहाँ पॉसिबल गेट भी कर सकते हो आप। हाँ, मतलब हाँ, अगर आप गेट क्वालिफाई करते हो, गेट का टेस्ट लिटिल बिट इजी होता है। गेट के टेस्ट में आप IITs में अप्लाई करते हो, अगर आप देखो मास्टर्स में छोटा सा रिसर्च प्रोजेक्ट भी अच्छे से लिखा होगा, अगर पेपर चलो कॉन्फ्रेंस में आ जाए आपका, तो आपको वो वेटेज देंगे। क्योंकि देखो आप किसको लेना चाहोगे, बड़ी सिंपल सी बात है, आपने घर में किसी को काम के लिए रखना है, किसी अनट्रेंड आदमी को रखोगे कि ट्रेंड आदमी को रखोगे? ट्रेंड आदमी को ना।
तो लोगों को चाहिए कि आपको क्या आता है। जैसे बीएससी की आपने, एक तो है कि फिजिक्स पढ़ी, हमने फॉर्मूले याद किए और जी पेपर पास कर लिया। दूसरे कि आपको फिजिक्स कितनी आती है, दैट मीन्स आपकी अपनी थिंकिंग क्या बोल रही है, आप कोई फिनोमिना देख रहे हो, ठीक है, तो उसके बारे में आपकी इंडिपेंडेंट थॉट क्या है, क्या विचार हैं। अगर वो चीज आप बच्चों में डेवलप हो जाती है तो श्योरली आप लोग कहीं भी जा सकते हो। फिजिक्स डजंट मीन कि टेस्ट पास करने, फिजिक्स का मतलब एक इट्स अ फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है, तो आपकी फिलोसफी कितनी ब्रॉडेंड है उसके बेसिस पे आप लोगों को चूज किया जाएगा, जो मेरा मानना है। चाहे आप फिजिक्स टीचर हो, चाहे आप फिजिक्स रिसर्चर हो, जब तक आप में अपनी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं हो पाएगी तो मैं आपको एज ए फिजिसिस्ट नहीं मानूंगा। बिकॉज लोगों ने बंद कमरों में बैठ के सोच के ही क्वेश्चंस दे दी हुई हैं एंड दे गॉट द नोबेल प्राइज। इवन जब मैं एमएससी कर रहा था, मैंने क्वांटम का जो पेपर है 2 बार फेल करके निकाला है। तो फिजिक्स के मतलब अगर बात करें तो मेरी इतनी अच्छी फिजिक्स नहीं है, बट आई नो हाउ टू डू दिस एंड दैट्स मैटर। और वो अपने आप आ जाती है फिजिक्स, और वहां जाके मेरे ख्याल से कोर्स वर्क भी करना पड़ता है एंड यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स। पढ़ना पड़ेगा, किताबें खोल के रखते हैं वो टेस्ट का कैसे वहाँ जब कोर्स वर्क किया था बुक्स का, बहुत ही चैलेंजिंग रहता है कोर्स वर्क वहाँ का। बुक्स खुली थी, बल्कि वो प्रॉब्लम आपको देंगे सॉल्व करने को। जैसे मान लो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की प्रॉब्लम दे दी, कर लो, ये किटल आप रख सकते हो साथ में रेफरेंस बुक। कुछ प्रोफेसर जो ओपन बुक का एग्जाम देते हैं, आप इंटरनेट का यूज करो, आप बुक का यूज करो एक पेपर में, वो लेवल इतना डिफिकल्ट रहता है उनका, बट इजी हो जाता है। वो अच्छी इवन वो अच्छी वो उसमें पढ़ाते हुए समझाते जो चीज़ें अच्छे सिंपल वे में समझाते हैं। ओके, थैंक यू ऑल। I thank you, Mr. Narendra, for this interactive session, but you students didn't make it interactive. This session is interactive because of Principal Madam Narendra, and I also contributed a little bit, and these 3 students, they also contributed, and even girls didn't ask any question. It's very strange. So I thank you again. Now I call Ajit sir. बच्चों, थोड़ा सा रिसर्च के बारे में आपको आई थिंक काफ़ी इंसाइट मिली होगी। अब अरुण सर ने नोबेल प्राइज़ का नाम भी लिया, तो बच्चों एक बार नोबेल प्राइज़ में जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था आइंस्टाइन को, तो मैंने कहीं से कुछ वर्ड सुने, तो उस टाइम बोला गया कि बर्नार्ड शॉ के वर्ड्स हैं वो, आई थिंक लिटरेचर में उनको प्राइज़ मिला था। तो जब वो डिलीवर कर रहे थे उनको प्राइज मिलर के बारे में, तो उनको बोला गया कि पहले 100-200 साल जो थे कभी गैलीलियो के रहे, उसके बाद 100-200 साल न्यूटन के रहे, नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ आइंस्टाइन। ये देखने की बात है कि वो कब तक उनका साम्राज्य चलेगा। तो बच्चों, हम साइंटिफिक साम्राज्य जो है अभी आइंस्टाइन के वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो उन्होंने यही बोला था कि इनका साम्राज्य जो है हमें अभी नहीं लगता कि इनका 100-200 से भी आगे जाएगा, राइट। तो बच्चों, काफ़ी बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए इस फील्ड में। जैसे हमारे आसपास कैसे काफ़ी नेचुरल घटनाएं होती हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ वाटर का। वाटर को बच्चों अगर देखें आप, तो जीके का क्वेश्चन आता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। लेकिन बच्चों अगर आप देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस बनती है, राइट। तो काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी डेंसिटी कम है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़्यादा है, इट इज स्टिल लिक्विड, वहाँ पे सॉलिड फॉर्म में आ गया तब भी नहीं है। तो बच्चों, नेचर भी हमें काफ़ी कुछ इंस्पायर करता है। तो इसके बाद अरुण सर ने बताया क्रोनिक पेनी मॉडल, ब्लॉक्स थ्योरम। बच्चों, आप हम क्राइम करते रहते हैं कि ये मैथमेटिक्स क्या है, लेकिन जब रिसर्च में जाएंगे तो वाकई ही आपको इंसाइट मिलेगी क्रोनिक पेनी मॉडल जो है यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या बता रहा है, ये बैंड स्ट्रक्चर के बारे में कैसे बता रहा है, ठीक है, पीरियोडिक मोशन कैसे बन रहा है, तो ये सारा आगे चलेगा। तो वहाँ पे इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट की बहुत ही ब्यूटीफुल एप्लीकेशन सामने आती है। अब नैनो स्केल्स की बात कर रहे थे सर,
जिस तरह से अब कई मटेरियल ऐसे होंगे, जब कार्बन को आप बल्क में लेंगे तो बच्चों वो इंसुलेटर है, जब आप इसको 1 या 2 डायमेंशन में यूज करेंगे तो ये क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है, राइट। तो ऐसा काफ़ी ये सब कुछ जो है हम इसको जो बात चली थी अभी कंडेंस्ड मैटर में एक्सपेरिमेंटल की बात चली थी, तो थ्योरेटिकली इन चीज़ों की इंसाइट पहले की जा सकती है और कई चीज़ें बाद में हम एक्सप्लोर करते हैं कि थ्योरेटिकली देखो कंप्यूटर पे सिमुलेशन करके मॉडल बना के ये कंडक्टर बनना है तो ये कंडक्टर उधर भी होना चाहिए, राइट। तो एक्सपेरिमेंटली भी इन चीज़ों को फिर देखा जाता है। तो थैंक यू नरेंद्र जी फॉर अ वंडरफुल टॉक। Now I request our worthy principal, our physics faculty, to present a token of arriving here, a memento to Narendra ji. Photograph ले रहा हूँ।